Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Today we are going to discuss functional components of a digital computer and their interconnections. Detailed functional components and their interconnections. As we discussed in previous class, there are three sections of a computer like input, processing unit and output. The processing unit is further divided into some categories called as arithmetic logical unit, control unit and memory unit. Arithmetic and logical unit is responsible for arithmetic and logical operations. Control unit is responsible for controlling those operations, and memory unit is responsible for providing storage. Whether the memory unit having registers, RAM, ROM, anything, okay, all this storage classifies into memory unit. Single unit, उसको memory unit का नाम दे दिया है, okay. Now let's concentrate on the first one, input. The input unit having some input devices like which is responsible for providing input to the system. इनपुट कैसे दी जा सकती है? इनपुट आप जॉयस्टिक से दे सकते हो, माउस से दे सकते हो, कीबोर्ड से दे सकते हो, स्कैनर के थ्रू दे सकते हो. सो these are the common input devices, okay, that are attached to your computer and they can convert the input into a binary language. Means you are writing your name like Abhay is there, okay, Abhay, you want to write Abhay or Ajay, okay, so you have to write Ajay, but computer doesn't understand Ajay, so computer understands what? Binary, okay. You will providing input in the English format Ajay, but the input device converts your English to binary and it will provided binary to computer. Clear? Similarly, central processing unit is responsible for processing. Once the information is entered into computer में जैसी information आएगी input devices, the processor processes it. Processor का काम क्या होगा? उसको process करने का. The CPU is called brain of a computer. CPU is called brain, like जैसे human brain होता है, सारा काम वही होता है. For example, someone sit down, someone said stand up. तो बेसिकली क्या होगा? आपने जैसे stand up या sit down ये सुना, तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जनरेट होगा जो बताएगा that what is the meaning of this instruction, और वो इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आपका ब्रेन डिकोड करेगा, मीनिंग बताएगा, वो ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे. इफ यू आर स्टैंडिंग देन यू कैन सिट डाउन आफ्टर रिसीविंग द कमांड ऑफ सिट डाउन, एंड इफ यू आर ऑलरेडी जो है अगर आप बैठे हुए हैं, जैसे ही स्टैंड अप सुनेंगे तो आप खड़े रहेंगे, या फिर हो सकता है कि आप खड़े हैं ऑलरेडी और फिर से स्टैंड अप की कमांड सुनी तो फिर भी खड़े रहे, ओके. छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ गेम खेला था सिट डाउन स्टैंड अप का, आप लोगों ने भी खेला होगा. तो वो बेसिकली क्या होता है, जस्ट कि आपका ह्यूमन ब्रेन कितने फास्टली कोई इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर रहा है और उसको प्रोसेस कर रहा है. सिमिलरली कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर कमांड मिलती है, इंस्ट्रक्शन मिलती है, उस इंस्ट्रक्शन की कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और वो ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? प्रोसेसर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, बिकॉज इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर. सारा कंट्रोल उसी के पास है, कोई कौन सा ऑपरेशन करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है, एवरीथिंग. इट फर्स्ट फेचेस. फेचेस का मतलब होता है लेना, उठाना. इट फर्स्ट फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी. जैसे आपको एक इंस्ट्रक्शन मिली सिट डाउन,
सबसे पहले क्या करोगे, सिट डाउन का मतलब ढूंढोगे। ब्रेन क्या करेगा, सिट डाउन का मीनिंग ढूंढेगा। दैट मीन्स सिट द ब्रेन फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में कहीं पे सिट डाउन का मतलब लिखा हुआ है आपके, तो वो फेच कर रहा है उसका मीनिंग। इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड देन इंटरप्रेट्स देम सो एज टू नो इज टू बी डन। उसका मीनिंग इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट का मतलब होता है कन्वर्जन। ओके, मीनिंग को इंटरप्रेट करेगा, कन्वर्ट करेगा और उस पर्टिकुलर मीनिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। इफ रिक्वायर्ड डेटा इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। अगर उसके लिए है कि भाई, मैंने कहा ब्रिंग दैट चेयर, ओके, अब आपको ब्रिंग का मतलब पता है, शेयर का मतलब पता है, बट इसके लिए आपको एक जो है कुछ डेटा उठाना पड़ेगा। कौन सा डेटा उठाना पड़ेगा, दैट चेयर। तो आप उसी पर्टिकुलर चेयर को उठाकर लाओगे। ओके, सो इफ रिक्वायर्ड डेटा इज फेच्ड, अगर उस ऑपरेशन में कोई एक्सटर्नल डेटा का रिक्वायरमेंट है तो वो पर्टिकुलर डेटा फेच किया जाएगा। फेच मीन्स उठाया जाएगा मेमोरी से या इनपुट डिवाइस से। लाइक अगर रिले रेस की बात करते हैं हम, ओके, रिले रेस में क्या होता है, आपको एक आर्टिकल आपसे पहले वाला जो रनर है वो पास ऑन करता है। ओके, बट इन केस ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रिंग दैट चेयर, उसमें कोई समवन कोई नया पर्सन तो आपको चेयर नहीं दे रहा, हो सकता है आप खुद ले लें। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक आदमी चेयर लेके आ रहा है और उसी के बारे में कह दिया है दैट ब्रिंग दैट चेयर। ओके, सो यू कैन रिसीव द डेटा फ्रॉम मेमोरी एज वेल एज फ्रॉम इनपुट डिवाइस। Clear to everyone? Thereafter, CPU executes or performs the required. Then CPU executes or performs the required computation or operation. जो भी required operation होगा, computation करनी है, डिस्प्ले करना है, एग्जीक्यूट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, काम करना है, वो कंप्यूटेशन का काम सीपीयू परफॉर्म करेगा। जो आउटपुट होगी या तो आउटपुट को स्टोर कराएगा या डिस्प्ले कराएगा। मीन्स आपने आउटपुट को स्टोर कर दिया कि हाँ इस फाइल में इसका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए और रिजल्ट जो है किसी एक्स फाइल में चला जाए। अदरवाइज जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपको सामने डिस्प्ले पर, मॉनिटर के ऊपर शो हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आउटपुट आपके पास आ जाएगा। द सीपीयू हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ALU, CU एंड मेमोरी रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी यूनिट्स होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं बट बहुत फास्ट होती हैं। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने होते हैं वो मेमोरी रजिस्टर्स में ही परफॉर्म होते हैं। ALU, as we discussed earlier, ALU is responsible for arithmetic logical unit. ALU stands for arithmetic. Now, as the name ALU, arithmetic and logical unit, suggests, it performs the mathematical calculations and logical operations. Mathematical calculations means addition, subtraction, multiplication, division. Logical operation means comparison, less than, greater than. Okay, so इस तरह के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो ALU डिवाइस करेगा। ALU इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल गेट, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से ALU डिवाइस फॉर्म होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट coordinates and controls the data flow in and out of CPU. CPU में कब डेटा आएगा, कहां से डेटा आएगा, CPU कहां डेटा स्टोर करेगा, कहां डेटा सेंड करेगा, कौन सा ऑपरेशन कब एग्जीक्यूट होना है, किसको कब टाइमिंग सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये सब कंट्रोल यूनिट करता है। बिकॉज कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशन। कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, कैसे आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये कंट्रोल यूनिट पर डिपेंड करता है। कौन सा रजिस्टर यूज होगा, किस रजिस्टर में एड्रेस होगा, किस रजिस्टर में डेटा होगा, कौन सी लोकेशन से डेटा फेच किया जाएगा, कौन सी लोकेशन पर रिजल्ट को स्टोर किया जाएगा, कब आप रजिस्टर ए यूज कर रहे हो, कब आप रजिस्टर बी यूज कर रहे हो, ये सारा काम कौन दिखता है, कंट्रोल यूनिट। ओके, इट मींस कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द डेटा फ्लो इन एंड आउट ऑफ। इन एंड आउट का मतलब क्या होता है, सीपीयू की तरफ जो डेटा आ रहा है दैट इज इन, एंड सीपीयू से प्रोसेस होकर जो डेटा जा रहा है दैट इज आउट। मींस रॉ इनपुट और आउटपुट दोनों पर जो है कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल रहता है। ऑल्सो द कंट्रोल यूनिट इज कनेक्टेड विद रजिस्टर्स, मेमोरी यूनिट, ALU। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर के हर एक पार्ट के साथ कनेक्टेड होता है, बिकॉज कंट्रोल यूनिट अकेला सबको लुक आफ्टर करता है। लुक आफ्टर इन द सेंस
लाइक एक टाइमिंग जनरेट होता है कि टाइम T1 पर आप डेटा भेजोगे, टाइम T1 पर ये डेटा रिसीव करेगा, टाइम T2 पर ये प्रोसेस करेगा। तो वो सारे की सारी चीजें तभी हो सकती है जब एक कॉमन क्लॉक प्रोवाइड की जाए। क्लॉक इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन। और क्लॉक मैनेजमेंट का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। क्लॉक मैनेजमेंट का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। क्लॉक क्या होगा? एक कॉमन टाइम सिग्नल होगा जिस पर सभी डिवाइसेस काम करेंगी इफ दे आर इन सिंक्रोनस मोड। इफ दे आर इन सिंक्रोनस मोड। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स क्या है? स्मॉल मेमोरी यूनिट है। इंडिविजुअल अगर आप बिट की बात करते हैं, सिंगल बिट 0 या 1, दैट इज स्टोर्ड इन अ फ्लिप फ्लॉप। Flip flop is a digital circuit. Combination of flip flops will give you the registers. Okay, 4 फ्लिप फ्लॉप को इकट्ठा करेंगे तो 4 बिट का रजिस्टर बन जाएगा। 8 फ्लिप फ्लॉप को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो 8 बिट का रजिस्टर बन जाएगा। सिमिलरली 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट एंड सो ऑन, जितने भी बिट का आपको रजिस्टर बनाना है उतने ही बिट की आप फ्लॉप्स एक साथ क्लब करोगे। मल्टीपल रजिस्टर्स को एक साथ क्लब करते हैं तो एक सिंगल मेमोरी यूनिट बनती है। अगर आप बहुत हाई स्पीड प्रोसेसर, so in the same manner combining flip flops together will form the registers. If you combine 16 flip flops together it will form 16 bit. Similarly 32 flip flops will give you 32 bit and 64 flip flops together will give you 64 bit registers. Okay, some registers are already defined in computer. For example, accumulator. Accumulator is represented as A, AC और ACC। अलग अलग प्रोसेसर में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्यूमुलेटर की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया AC, आप पेपर में एक्यूमुलेटर की शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं A। कोई थर्ड पर्सन है वो लिख रहा है ACC। ऑल आर करेक्ट। ओके, बट उस शॉर्ट फॉर्म से पहले आपको एक बार लिखना पड़ेगा एक्यूमुलेटर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटर, ब्रैकेट में आपने A लिख दिया। ओके, नेक्स्ट टाइम आप A यूज करो, रजिस्टर A, इट मीन्स वो एक्यूमुलेटर की बात कर रहा है। यू कैन राइट A, AC, ACC। एक्यूमुलेटर के 3 शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो जनरली कहीं पर भी यूज होती हैं। एक्यूमुलेटर इज द मेन रजिस्टर और द डिफॉल्ट रजिस्टर। प्रोसेसर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो उसका रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में डालेगा और वो एक्यूमुलेटर को ही बाय डिफॉल्ट पहला रजिस्टर मानता है जिसमें से वो इनपुट ले। until unless, listen carefully, until unless आप एक्यूमुलेटर के अलावा कोई दूसरा रजिस्टर मेंशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऐड बी, मैंने लिखा ऐड बी, तो वो क्या करेगा? एक कंटेंट तो बी से ले लेगा बट दूसरा कंटेंट, दूसरा इनपुट कहां से लेगा? बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर से। तो वो क्या करेगा? ए प्लस बी, आउटपुट कहां जाएगी? अगेन ए में, बिकॉज मैंने सिर्फ एक ही इनपुट बताई है, दैट इज बी ओनली। तो पहली इनपुट कहां से आ जाएगी? बी से। दूसरी इनपुट ए से ले लेगा वो और आउटपुट भी ए में डाल देगा। इफ इंस्ट्रक्शन इज लाइक ऐड बी सी, तो क्या होगा? दोनों इनपुट दिखाई गई है बी एंड सी, इन दोनों को ऐड करो, बट कहां डालना है ये नहीं बताया, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में डाल देगा। अगर इंस्ट्रक्शन होती है ऐड बी सी डी, इसका मतलब सोर्स क्या है? बी पहला, दूसरा सोर्स क्या है? सी, तीसरा क्या है? रिजल्ट। तो बी प्लस सी विल बी गिवन इनटू डी। ओके, सो प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट लाइक, अगर कोई भी प्रोसेसर रजिस्टर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर से ऑपरेशन करेगा। अगर प्रोसेसर रजिस्टर मेंशन है एक और चाहिए 2 तो दूसरा वो एक्यूमुलेटर ले लेगा। अगर रिजल्ट स्टोर कराने के लिए लोकेशन मेंशन नहीं है तो रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर करा देगा, अनटिल अनलेस आपने कोई लोकेशन मेंशन नहीं की है तो। ओके, read here, accumulator is the main register in ALU and contains one of the operands of an operation to be performed in the ALU. Okay. Next is memory. Memory attached to CPU is used for storage of data and instructions. Registers are for operations. Registers जो थे वो operation perform करने के लिए थे, but memory is for storing the data and instruction. Means जो program आपने execute करना है वो program भी तो कहीं store करना पड़ेगा। वो instructions जो 2+3 अगर आपने परफॉर्म करना है तो प्लस क्या करता है वो भी तो बताना पड़ेगा, 2 क्या है, 3 क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो इन सबको कहाँ स्टोर करेंगे? मेमोरी में। एंड मेमोरी को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर, प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब हार्ड ड्राइव।
सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब हार्ड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी का मतलब क्या है, वो आपके सिस्टम में हो या ना हो, कंप्यूटर को फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर को चलने के लिए जो मिनिमम मेमोरी चाहिए दैट इज प्राइमरी, प्राइमरी मींस मेन मेमोरी, एंड मेन मेमोरी इज क्लासिफाइड एज रैम एंड रोम, रैम एंड रोम, okay. RAM means random access memory, random access memory, and you all are very much familiar with RAM, ROM and its definition, okay. So I don't think so कि उसकी definition बताने का जरूरत है। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट, जहां पर भी आप आउटपुट लेना चाहते हो, स्क्रीन पर देखना चाहते हो, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे लेना चाहते हो, आप प्रिंट कराना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, किसी फाइल में लिखना चाहते हो, वो सारी की सारी जो कॉम्बिनेशन होंगे दैट इज आउटपुट यूनिट, और वो सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा, आउटपुट। नेक्स्ट इज बसेस, बसेस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मींस एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक अगर कोई डेटा लेके जाना है दैट विल बी डन बाय द बसेस। बसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। जिस पर्टिकुलर लाइन में एड्रेस ट्रेवल होगा दैट इज एड्रेस बस, जिस पर्टिकुलर वायर में, लाइन में डेटा ट्रेवल होगा दैट विल बी डेटा बस, एंड जहां कंट्रोल सिग्नल्स कैरी होंगे वो कंट्रोल बस कहलाएगा, ओके। नाउ इंटरकनेक्शंस, लाइक नाउ दिस फंक्शनल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू एक है, मेमोरी एक जगह है, इनपुट डिवाइस एक जगह है, आउटपुट डिवाइस एक जगह है, ये सब कनेक्टेड किसके थ्रू है, सिम बसेस के थ्रू। ये सब कनेक्टेड किसके थ्रू है, सिस्टम बसेस के थ्रू हैं। सिस्टम बस का मतलब क्या हो गया, एक वायर है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्टेड है। आपने ये जो ग्रीन कलर की वायर, ये सारी की सारी वायर्स हैं, ओके। सीपीयू से एक वायर निकली, मेमोरी में चली गई, वही सेम वायर जो है इनपुट से कनेक्ट हो रही है, वही वायर यहाँ आगे आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्शंस। इंटरकनेक्शंस मींस उन दोनों के इन कंपोनेंट्स के यूनिट आपस में किस तरह के कनेक्शंस हैं, दैट इज नोन एज इंटरकनेक्शंस, ओके। Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.